in momentum, we have studied that it is a product of mass and velocity, right? It's a product of mass and velocity. That means that whenever a body contains some amount of matter in it, a body has some amount of matter in it, and it gains some velocity, it gains some speed, then it achieves a state of momentum, which is denoted by P, right? And mass is measured in kg. SI unit of mass is kg. SI unit of velocity is meter per second. So the total unit of momentum becomes kg meter per second. This is the SI unit of momentum. What is the difference between SI unit and normal unit? Can anybody tell? What is the difference between SI unit and a normal unit? If I'm saying the SI unit of mass is kg and unit of mass is gram. So what is the difference between these two things? Can anybody explain me this thing? The full form of SI unit is that System International. It means that this unit could be used in the whole world. So if I have to deliver some things to my uncle or anything, so if he lives in foreign area, so I have to give the weight of that in kg. So because the SI unit of mass is kg, and a simple Great. unit is that way we can use it. Right, he's correct that SI unit is used all over the world, Pranchu is saying, and it is internationally accepted. So if we want trade in a foreign country, if I want to send something in a foreign country, or if I want to have a conversation with someone who is living in a foreign country, then if I am trading in the concept of mass, in the concept of length, in the concept of time, I should have some SI units that can be understood both by me and the party B. So the SI unit of mass is kg, length is meter, time is second. That is why we use kg, meter and second as SI units. The normal units can be gram, can be milligram. For meter or for length, it can be kilometer, it can be miles, it can be centimeter. For time, it can be hour, it can be minutes. But the SI unit, System International, is kg, meter and second. So the SI unit of momentum is kg meter per second. Maybe you can get a MCQ where you can be asked what is the SI unit of momentum out of these four. So there can be kg meter per second, there can be gram centimeter per hour, there can be gram centimeter per hour, right? So you need to understand what is the difference between SI unit and normal unit. In second law of motion, सर आपकी आवाज कट रही है. I think it is audible. Now it is audible properly. I think it is audible properly. Maybe your network is weak or something like that. Yes, voice is clear. Yeah. So second law of motion stated that the rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force, is proportional to the applied unbalanced force. And today we will see the mathematical formulation of this concept, how we can prove this concept mathematically, and how we can generate some good formulas in order to understand the same. So rate of change of momentum is proportional to the force applied. Means what amount of force I am applying, it totally decides what would be the change in momentum. I have given you one good example of skills. So your learning is a product of my mind and the skills which I have right now. If I have more skills, if I know more things, I'll be able to transfer them more to your mind into skills, right? So the rate of change, or if I would say the change in skills,
would be directly proportional to what force I am applying in the direction of the desired movement, right? Now, there is a difference between change in momentum and rate of change of momentum. So is there any student who know that the difference between change in momentum and the rate of change of momentum? Sir, change in momentum means just the momentum is being changed, or it is being transferred from one object to another. But the rate of change of momentum means that acceleration or retardation applied on the momentum. Okay. Any simple explanation? This is good explanation, but I want a simple explanation which can be understood by everyone. So any other student who can give a simple, very simple explanation of rate of change of momentum and the change in momentum, the difference between both? What is the difference when I'm talking about the rate of change and when I'm just talking about the change? Let me give you an example. Change in momentum and rate of change of momentum. So take it in a practical situation. आज कोरोना से इन्फेक्टेड जो पर्सन्स हैं, राइट, मान लीजिए वो 5,000 हैं बस, ठीक है, वो 5,000 इन्फेक्टेड पर्सन हैं और एक टाइम में आके वो 0 हो गए, यानी रिकवर्ड हो गए सारे, ठीक है। तो चेंज क्या आया? 5,000 से 0 लोग हो गए, तो चेंज हो गया 5,000 people infected from corona and then they recovered from corona. That means the change in the numerical value of infected person with respect to the recovered person is 5,000. Now this recovery can take place in 1 month and this recovery can take place in 1 year. This recovery can take place in 50 days or this recovery can take place in 5,000 days. If this recovery take place in 50 days, then number of persons changing from infected to recovered per day will be 100. Yani 100 people per day would be the recovery rate. Try to understand from this point of view. And if 5,000 people taking 5,000 days to recover, that means 1 person per day would be the recovery rate. In first situation, we were just calculating how much of infected persons have been recovered. So it is 5,000. There we were not considering the value of time or the excess of time. But when I am calculating the importance of time, then I'm getting the recovery rate. So what does rate do? Rate helps us to understand how some physical quantity is changing. अगर recovery rate fast है, इसका मतलब क्या है? टाइम बहुत कम लग रहा है. रिकवरी रेट फास्ट है मतलब टाइम बहुत कम लग रहा है. रिकवरी रेट ज्यादा है मतलब स्लो है मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है. सो टाइम की ये इंपॉर्टेंस है. इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट हाउ मच ऑफ आवर न्यूमेरिकल वैल्यू इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ टॉकिंग अबाउट change in momentum. Suppose an object of mass m is traveling from an initial point to a final point. At an initial point, this object has an initial velocity of u. Now this object is being accelerated uniformly. So uniform acceleration means a fixed acceleration throughout the motion. So it is being accelerated uniformly and it gains a velocity v after reaching a certain point. So if I want to calculate the change in momentum,
then I need to find out the initial momentum and the final momentum. So initial momentum would be mass into initial velocity, which is u. Let us say it is p1. Final momentum is mass into its final velocity, which is v. Let's say the final momentum is p2. Now if I want to calculate the change in momentum, then it would be mv minus mu. So the change in momentum delta p, or you can say p2 minus p1, would be mv minus u. From this value we can just get what is the change in momentum. A bowler is throwing a ball at an initial velocity of 150 km per hour for his first delivery of the session. A bowler is throwing the ball at a final velocity of 180 km per hour in its final delivery of session. What would be the change in momentum? The initial velocity with which it was throwing into the mass of ball, and the final velocity with which the bowler was throwing with respect to the mass of ball, and you need to find out the change. So change is just the initial momentum minus the the final momentum minus the initial momentum. Now when I want to calculate the rate of change, so rate of change would be mv minus u with respect to time. How much of momentum is changing with respect to time? According to second law, now go to second law, it states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, right? So this is the rate of change of momentum. This is the rate of change of momentum. It is directly proportional to the force applied. So let's say force applied is directly proportional to the rate of change of momentum, right? Are you getting any equation which is known to you from the chapter motion? Is there anything which is related to the chapter motion? Yes. If you will see this part only, v minus u upon t. So what is change in velocity with respect to time? What is change in velocity with respect to time? In chapter motion, you have learned the same. Acceleration. Acceleration. Right. So if I want to replace this by acceleration, then force applied would be directly proportional to what? Mass into acceleration. That means F would be directly proportional to mass into acceleration. Do you know the formula of force? The formula of force is mass into acceleration. So from the rate of change of momentum, we are getting the formula of force. If I want to remove this proportionality sign, it would be F is equal to KMA. अगर आप proportionality sign को हटाना चाहते हो, अगर आप proportionality sign को हटाना चाहते हो, तो आप एक constant लगाते हो, ठीक है, ताकि proportionality sign हट जाए, and that constant is K here, proportionality constant. नाउ आपके फोर्स के फॉर्मूला में तो सिर्फ ma होता है, तो हम ऐसा क्या करें कि k की वैल्यू जो है वो यहाँ से 1 आ जाए. तो इसको डिफाइन करने के लिए 1 यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन किया गया. 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k इंटू 1 kg ऑफ मास एक्सेलरेटिंग फॉर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर ऐसा होता है तो 1 इज इक्वल टू k इंटू 1, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. अगर k की वैल्यू 1 आ जाती है और मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स अप्लाइड की वैल्यू आ गई? फोर्स अप्लाइड क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स की वैल्यू आ गई? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई? आ गई. ठीक है, हमने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं. कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी किसी स्टूडेंट को, उसको क्लियर कर लेते हैं. हमें पहले मोमेंटम को समझना था. हमने कहा कि भाई मोमेंटम इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट गेन्स सम वेलोसिटी. किसी बॉडी में कोई वेलोसिटी आ जाती है ना, तो उसके अंदर एबिलिटी हो जाती है अपनी वेलोसिटी को अपने मास के रिस्पेक्ट में किसी और में ट्रांसफर करने की. उसका एग्जांपल मैंने ये दिया कि अगर मेरे अंदर स्किल्स हैं और मेरा माइंड इज देयर द अमाउंट ऑफ मैटर, तो मेरे अंदर एबिलिटी आ जाएगी टू ट्रांसफर द स्किल्स टू द स्टूडेंट्स. If I want to calculate the change in momentum, how much of skills I have transferred to the students,
then it would be the initial momentum minus the final momentum. मतलब initially वो body किस velocity किस skills से चल रही थी, finally वो body किस velocity किस skills से चल रही है. तो change in momentum is simple, initial momentum minus final momentum. Now I wanted to know कि what is the rate of change. Rate means I wanted to know the criticality of time, कि कितना टाइम लग रहा है मोमेंटम चेंज होने में. इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने आपको स्किल से टास्क डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया. मान लीजिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जिसे एक स्टूडेंट ने 5 आवर्स में कंप्लीट करके समझ के क्वेश्चंस डिलीवर कर दिए. सेम कॉन्सेप्ट मैंने किसी और स्टूडेंट को पढ़ाया और उसने वो 5 आवर्स की जगह 5 डेज लगा दिए. तो रेट ऑफ चेंज किसका फास्ट होगा, 5 आवर्स लगाने वाले का या 5 डेज लगाने वाले का. रेट किसका फास्ट होगा, 5 आवर्स लगाने वाले का या 5 डेज लगाने वाले का. 5 आवर्स लगाने वाले का. 5 आवर्स लगाने वाले का. व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स कि अगर मुझे रेट किसी चीज का फास्ट करना है तो मुझे टाइम की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम. दैट इज व्हाई टाइम किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में. जो भी चीज डिनोमिनेटर में आती है अगर उसकी वैल्यू कम हो तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कब ज्यादा हो सकता है, जब टाइम बहुत कम लगे. ठीक है, टाइम बहुत कम लगे. यही मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक बॉल को कैच कर रहा है फील्डर, तो अगर वो सिर्फ ऐसे ही कर दे और वो टाइम को ना बढ़ाए, ऐसे पीछे हाथ ले जाके हैंड को पीछे रेस करके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फास्ट होगा और इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा. वहीं अगर ये सर इंजरी भी आ सकती है. हाँ, वहीं अगर ये टाइम को बढ़ा दे, ऐसे करके आराम से पीछे ले जाए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो स्लो हो जाएगा. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हमने देखा तो mv माइनस यू अपॉन टी कर दिया. mv माइनस यू अपॉन टी जब हमने करा तो हमें एक इक्वेशन मिली जिसमें v माइनस यू अपॉन टी को हम एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते थे. इसे एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया तो हमने देखा कि भाई फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ रहा है. अब फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ रहा है और हमने यही फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है. तो इस फॉर्मूला को अचीव करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगाया. इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाता. 1 करने के लिए 1 यूनिट ऑफ फोर्स को कुछ इस तरीके से सेट किया कि 1 kg ऑफ मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट करे. k की वैल्यू क्या आ गई, 1. अच्छा, एनी स्टूडेंट जो कि मुझे ये बताए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड इक्वल. Sir, proportional means the given value will if we reduce it to its lowest term, then sometime it would get the value that we have kept in the equality sign, and the equal sign refers that the value is equal to the given value. Okay. Any another explanation? This is good explanation, but any simple explanation? प्लीज रिस्पॉन्ड. जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना मेरे को समझ में आएगा हाउ मच ऑफ यू आर गेनिंग द कॉन्सेप्ट. Proportional tell us the relation and equal to means both sides are equal. Okay. So proportional means if I am changing x, y is changing with the same speed. X is changing with a certain speed, then y is changing with the same speed. This means proportional. So my growth is proportional to my efforts. If I would say, that would not be wrong. My growth, your growth, the growth of a student is directly proportional to the efforts he pays. As much efforts you are paying in your growth will rise up. You have low efforts, your growth will lower down, right? This is proportional. You are changing x, y is changing. X is not equal to y. Effort is not equal to growth. Effort is proportional to growth. Effort is growing, growth is growing. Your effort is increasing, your growth will be rising up. While equality means x is equal to y, simple. तो यहाँ पे ये है कि force is equal to mass into acceleration नहीं है. Force is directly proportional to mass into acceleration. यानी आप जैसे बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ाते जाओगे, फोर्स बढ़ाते जाओगे, सॉरी, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेटेड होती जाएगी बॉडी. इक्वल करने का मतलब है कि फोर्स
तब इक्वल होगा जब आप मास और एक्सेलरेशन को एक साथ रख रहे हो मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स में। k की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ फिक्स कर दो, यानी कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं ताकि ये इक्वालिटी में जिस साइड पे क्वांटिटी कम या ज्यादा है उसको बैलेंस कर दिया जाए क्वालिटी। सपोज I would say 2x is directly proportional to 4y. If I want to remove this proportionality sign, what should I do? 2x should be equal to 4 into y into k. The value of k should be such that 2x should become equal to 4y. तो इसकी कुछ वैल्यू डिसाइड की जाती है विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूमेरिकल रिलेशन। ठीक है, हो सकता है x की वैल्यू y के इक्वल हो, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2y। इसका मतलब क्या है, मैंने k की वैल्यू यूज करके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यूज करके किसी चीज को प्रोपोर्शनल से इक्वल में कर दिया। इसी तरीके से जब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, दैट मींस मैंने इस कांस्टेंट का यूज करके इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ना कुछ यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है जो इसकी वैल्यू को इसके इक्वल कर दे रहा है, राइट? तो जब ऐसा किया तो मुझे, हाँ बोलो सर, कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी? क्वेश्चन नहीं, रिलेशन के अकॉर्डिंग। रिलेशन के अकॉर्डिंग, रिलेशन किसके बीच में? जैसे ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये तो मैंने अपनी आपको समझ के लिए समझा दिया, लेकिन जैसे फोर्स इक्वल टू KMA था ना, तो ये रिलेशन जो है ना, ये एक फिक्स्ड रिलेशन है, फिक्स्ड है ये रिलेशन। इस रिलेशन में कुछ ऐसा करना है कि k की वैल्यू ऐसी हो जाए कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आए, और हमेशा हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज करें। जैसे अभी आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू होती है g इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r²। तो ये जो g कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऐसी फिक्स करनी है कि फोर्स इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r²। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है डिपेंड करती है कि रिलेशन क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिलेशन कौन सा यूज कर रहे हैं हम। हर रिलेशन के लिए अलग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अलग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है। g की वैल्यू यहाँ पे होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। वहीं अगर आप k की वैल्यू देख रहे हो तो k की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 1। सो देयर इज अ डिफरेंस। होप यू हैव गेन्ड दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? आपकी एनसीईआरटी की लास्ट लाइन पढ़ो एक बार, पेज नंबर 119 की। इसमें एक तो फोर्स की यूनिट दे दी गई। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होगी? जब मास इनटू एक्सेलरेशन है तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसकी जो हम नॉन यूनिट लेते हैं वो लेते हैं न्यूटन। तो फोर्स की जो नॉन यूनिट हो गई वो क्या हो गई, न्यूटन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आपकी लास्ट स्टेटमेंट कह रही है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ये हम पता कैसे लगाएं, उसका कितना मास है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई। समझ में आया? बहुत सिंपल सी चीज है। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है। मैंने आपको एक कार का एग्जांपल दिया था ना कि यहाँ पे दो लोग हैं, ये दोनों एक कार को धक्का दे रहे हैं, ये कार खराब हो गई है, तो इन्होंने कितना फोर्स लगाया इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इस कार का कितना मास है और ये कितनी एक्सेलरेट हुई, इस कार का कितना मास है और ये कितनी एक्सेलरेट हुई। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स अप्लाइड निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये अपना पर्सनल फोर्स कितना लगा रहे हैं, तो इन दोनों का मास कितना है, m1 प्लस m2, इन दोनों का मास कितना है, ये अपनी वेलोसिटी में क्या चेंज लेके आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अपनी वेलोसिटी में क्या चेंज लेके आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये 0 से स्टार्ट कर रहे थे और ये 5 मीटर पर सेकंड तक भाग रहे हैं, उससे भी फोर्स निकल जाएगा। और ये इस कार पे कितना फोर्स लग रहा है वो इसके मास और इसकी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द एक्सेलरेशन it is producing. The force of an object depends upon the mass and the acceleration that object is producing
with respect to the applied force, right? So आपको एनसीईआरटी में देखो 9.8 जो फिगर है वो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन दी हुई है जो कि मैंने आपको समझाई थी कैच वाली कंडीशन। कैच वाली कंडीशन दी हुई है एग्जैक्टली सेम, देखो। सर हम्म सर जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट और न्यूटन की यूनिट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, देखो जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना वो इसकी फॉर्मूला ड्रिवन यूनिट है, ये फॉर्मूला ड्रिवन यूनिट है यानी ये फॉर्मूला से आई है। लेकिन जो न्यूटन यूनिट है ना वो उसकी जनरल यूनिट है, ये नोन जिससे इसे जानते हैं, क्योंकि न्यूटन वाज द साइंटिस्ट हु वाज डिस्कवरिंग दीज फंडामेंटल्स ऑफ मोशन, सो ही हैज गिवन दिस यूनिट अलोंग विद हिज नेम, न्यूटन नाम से रख देंगे, ठीक है। तो ये नोन यूनिट हो गई, यानी कि इसको हम जनरल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी ऐसा यूनिट में कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि यूनिट इज द यूनिट ऑफ फोर्स हैज केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन, ठीक है। तो जब आपको फॉर्मूला ड्रिवन पूछा जाए तो आप केजी मीटर पर सेकंड बोलोगे, और जब आपको नॉन यूनिट पूछा जाए तो आप न्यूटन बोलोगे। वैसे ज्यादा यूज किया जाता है न्यूटन, जब आपको डिराइव करना होता है कुछ चीज तभी आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हो, क्योंकि न्यूटन इज इजी टू रिमेंबर, दैट इज व्हाई इसको रखा गया, और कुछ खास डिफरेंस नहीं। डिफरेंस सर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन हो सकता है? राइट 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 राइट, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज राइट, सॉरी। वैभव राठी, पहले तो आप अपना नेम को ठीक करो, ऐसा समझ में नहीं आता है क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने ये पढ़ा कि भाई मोमेंटम जो है उसको हम कैसे अपनी जनरल इक्वेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो कल मोमेंटम पढ़ लिया था, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। फिर आज हमने देखा कि मोमेंटम को चेंज भी किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, फाइनली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मेरा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज द चेंज। तो चेंज इज सिंपल, फाइनल माइनस इनिशियल। आपने आज 10 स्कोर किया आउट ऑफ 20, आपने कल 19 स्कोर किया आउट ऑफ 20, व्हाट वुड बी द चेंज? 19 minus 10, simple. But when I want to calculate the rate of change of your marks, rate of change of momentum, then there would be the implication of time. आपने आज 10 स्कोर किया, कल 15 स्कोर किया, परसों 19 स्कोर किया, तो change in marks would be 15 minus 10, 19 minus 15. But when I want to calculate the rate, तो टाइम का भी उसमें implication आएगा कि आपको 2 दिन लग गए अपने मार्क्स को improve करने में। So if you want to increase the rate of change of something, you need to decrease the time. रेट चेंज को फास्ट करना है तो टाइम को कम कर दो, रेट चेंज को स्लो करना है तो टाइम को ज्यादा कर दो। फील्डर ने कैच किया, उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को स्लो करना था तो उसने बढ़ा दिया ऐसे करके। हमें किसी चीज का रेट ऑफ चेंज फास्ट करना है तो हमें टाइम को कम करना पड़ेगा। हमें अपनी स्किल्स को ज्यादा बढ़ाना है तो टाइम जिसमें हम वो चीजें अचीव कर रहे हैं उसे कम करना पड़ेगा, है ना। जल्दी से चीजें अचीव करनी पड़ेगी, जल्दी से चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जब इसको टाइम के एस्पेक्ट में देखा तो ये पाया कि v माइनस यू अपॉन टी को हम एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देते हैं भाई। जब इसे एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया तो फॉर्मूला आ गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जब आ गया तो देखा कि ये तो इक्वल टू है फोर्स अप्लाइड के, ठीक है। कैन डिक्रीज इन वेलोसिटी इन चेंज, यस। तरुण पूछ रहे हैं कि सर हम वेलोसिटी को बढ़ा ही रहे हैं, क्या हम वेलोसिटी को घटा भी सकते हैं क्या? यस, आप वेलोसिटी को घटा सकते हो। जैसे कि मान लो एक कार है, बहुत फाइनल वेलोसिटी से बहुत तेजी से आ रही थी, अब उसको आगे एक सामने एक कार दिख गई, ठीक है। तो अब क्या करेगी? वो अपनी वेलोसिटी को धीरे करेगी। तो अगर वो उस वेलोसिटी से आ रही थी जिससे वो बहुत फास्ट थी, 5th गियर पे चल रही थी, उससे हिट करती तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता। नहीं, अगर उसने बहुत स्लो कर दी अपनी स्पीड या वेलोसिटी और अब जाके वो जस्ट टच कर रही है दूसरी कार, मोमेंटम क्या होगा? बहुत ही कम होगा, बहुत ही स्लो होगा। समझ में आ रहा है? सर उस केस में एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगी उस केस में। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन होगी। यस, उसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगी। तो आप कह सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो कम इसलिए हुआ बिकॉज इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन देयर वाज रिटार्डेशन इन द बॉडी, राइट। सो दिस इज द परफेक्ट थिंग। जिस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, डिस्कस मोर विद मी, डिस्कस मोर विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अच्छा, अगर मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझ में आता है तो अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है हमारी नेक्स्ट क्लास में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि इसका यूज करके आप बहुत सारी ऐसी चीजें समझ सकते हो जो आज से पहले तक शायद समझ में ना आ रही हो। लेकिन उसके लिए ना ये आपको सेकंड लॉ अच्छे से समझना है और इसको वीडियो को जाके दोबारा से देखना है आज रात को, रिकॉर्डेड सेशन को, ताकि इसको समझने के बाद ही आप नेक्स्ट क्लास में आओ और फिर उसके बाद ही हम डिस्कस करें चीज़ों को, राइट। तो माई एफर्ट्स वुड बी 30%, बट चेंज इन मोमेंटम वुड डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स, कितना जल्दी आप उस चीज को ग्रैब करते हो। दैट विल लीड टू 100% ट्रांसफर इन मोमेंटम, राइट। सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने जो कॉन्सेप्ट है आज का पर्पस था वो खत्म कंप्लीट हो चुका है। थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं अगले इस सेशन में। तो न्यूमेरिकल का फायदा ये है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो अपने को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, प्रैक्टिकली भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और न्यूमेरिकली भी, तीनों एस्पेक्ट में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल है, उसको समझेंगे उसके पीछे की साइकोलॉजी कि क्यों ये न्यूमेरिकल आया और इससे हमने क्या सीखा। That would be our main purpose for our upcoming session. So this is all Okay, for sir. today's session. Please revise this concept again and then come into the next session with a positive note. Upload your assignments or your homework, you can say timely. Please upload them timely. Videos को photos की form में ही click करके upload कर दें. No need to upload video right now because I can see that attachment of video is not available there, right? So this is all for today's session. See you in the next session.